कि कविता अगर एक अच्छी कविता जो जीवन से हमें जोड़ती है और कुछ सिखाती है, अगर उसे आत्मसात कर लिया जाए और सबसे पहली बात वो याद हो जाए और उस किताब को देखने की जरूरत ना पड़े, तो वो एक मेरा शौक बनता गया। ठीक और है, फिर शुरू करते हैं एक बार। हाँ, तो बस फिर वो उस वजह से ही मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो गाना नहीं भी आता, फिर भी जैसे संपदा जी हैं, अनु जी इतना अच्छा हो गाते गई हैं, हो गई हो गई हो गई हो तो गई दीदी। तो इन सब के ओके, साथ भी कहीं कहीं मौका मिल जाता है। अब अपने आप को म्यूट कर ले जी, स्पीकर के अलावा। लो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। So welcome everybody to Cafe Spirituality Wisdom Talk, and today is our session with Amulya Shukla. Those of you who have attended before may remember the session that we had on Kabir, and those of you who were not attending and don't know about it, you can see it on the Cafe Spirituality YouTube channel. Now, what is Cafe Spirituality? Since a lot of people are new here, I will just let you know for a minute. So Cafe Spirituality is our effort to share our understanding and spiritual journey with each other and be supported by each other and support the others. There are no right or wrong ways. Everybody's way is unique. We have a FB group and we have a WhatsApp group as well. And those who are keen to join can always ask Amulya, if you've come through Amulya, for the WhatsApp group to be added to the WhatsApp group. He's also an admin. In fact, Cafe Spirituality में हर कोई admin होता है, ताकि जिस उसको लगता है अगर कि वो जानता है किसी को जो रेजोनेट करते हैं उसके साथ, वो अपने आप उसको ऐड कर पाए, कोई इश्यू नहीं है। और ये विजडम टॉक्स हमने इस लॉकडाउन के दौरान ही शुरू की थी, and I'm so glad that these are happening. And we've had an Ayurvedacharya come and speak. We have had people speak about Vedic chanting. We have had people speak about Tantra and about Sri Vidya. We had a talk with Amulya on Kabir. Now we're having today one on Rumi. And we have bhajan open mics. In fact, next week is the bhajan open mic. So next Sunday, so जैसे poetry open mic होता है, basically bhajan open mic, and we all tell in advance कि हम कौन सा भजन गाएंगे और कितने मिनट, ताकि curate किया जा सके. But it's pretty much a very happy time, and जो भी चाहे आप पुराने सारे sessions जाके Cafe Spirituality YouTube channel के ऊपर देख सकते हैं. अमूल्य का सेशन ऑन कबीर भी जाके वहीं पे देख सकते हैं अगर आपने मिस किया था. और आज जो ये सेशन रिकॉर्ड होगा ये भी वहां डाला जाएगा, एंड सो दैट पीपल कैन सी इट एट देयर convenience and also share forward as they would like to. Sometimes some people want to join and are not able to. So if we know somebody who resonates, please feel free to share with them. And that's it. I don't want to say much. अमूल्य को तो सब जानते ही हैं, तो मैं अमूल्य की क्या यहाँ पे तारीफ आप लोगों को सुनाऊं. और वैसे भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है. बाय द एंड ऑफ द सेशन आप खुद ही इतने गदगद होके आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे होंगे कि उससे पहले कोई भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है. सो अमूल्य, ओवर टू यू. आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज, और हम सबको हमारी जर्नी पे ले चले. आई एम गोइंग टू सिट बैक एंड रियली एंजॉय इट नाउ. थैंक यू वेरी मच. आई एम ग्रेटफुल. बहुत आभारी हूँ एंड आपका और कैफे स्पिरिचुअलिटी जो इतनी प्यारी, इतनी अद्भुत स्पेस ये क्रिएट हुई है, आपने की है, और कोई इसके पीछे विजन रहा होगा.
I think it's blossoming into unmatched beauty, and I'm grateful. I'm actually honored that I'm here. And this year, in the beginning of this year, I found some route to cafe and cafe spirituality, and it's been a beautiful journey. So thanks a lot, Anu, and thanks all our cafeites and all our cafe members, and those who wish to join can always join later. And Anu, later in the talk, I'll be sharing the screen, so you'll need to give me a permission for that. मैं आपको co-host बना देती हूँ। जी जी, वो कर दीजिए। फिर आप सब जो भी करना चाहें आप कर सकेंगे। हाँ, like I just felt that थोड़ा सा कुछ visual based हो, so there will be some presentation also, शायद आप लोग उसको ज़्यादा enjoy करें। पोइट्री के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये पोइट्री पे सिर्फ बोलने का काम तो बहुत हुआ है, पहले भी बरसों से चल रहा है काव्यांजलि के रूप में, लेकिन जिस तरह से आज आप देखेंगे वो रहेगा प्रेजेंटेशन बेस्ड, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप, क्योंकि मुझे ये वर्चुअल मीडियम थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हम सामने बैठे नहीं हैं, तो आप चाहे वीडियो पे हैं या वीडियो म्यूट भी है, आप एटलीस्ट चैट में अपने कुछ फीडबैक, उद्गार, रिएक्शन ज़रूर लिखते रहिए। इट विल हेल्प मी, बिकॉज मुझे लगेगा कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सो दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट। करते रहिएगा, बीच बीच में आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ ना अच्छा लगे, जो भी लिखते रहिएगा। सो आई स्टार्ट नाउ। मैंने शेयर स्क्रीन आपके लिए एनेबल कर दिया है, अगर आपको कुछ और को-होस्ट भी बनाने की जरूरत है तो बना सकती हूँ, आप बता दें। मुझे सिर्फ स्क्रीन शेयर करना होगा। हाँ ठीक है, वो कर दिया है। राइट, सो थैंक्स, एंड सो ओवर टू रूबी। एंड हिंदी में, हिंदुस्तानी में दो पंक्तियां सुनिए। दिस हाउ वी स्टार्ट आवर मीटिंग विद रूमी। तुम तो खुशबू हो, तुम तो खुशबू हो, सितारों की गुजरगाह हो तुम कहाँ आओगे इस दश्त पुरअसरार की पहनाई में। तुम तो खुशबू हो, सितारों की गुजरगाह हो तुम कहाँ आओगे इस दश्त पुरअसरार की पहनाई में, कैसे उतरोगे तमन्नाओं की गहराई में। सो दैट हैज बीन रूमी फॉर मी। इस कविता को मैं थोड़ा सा और इसका बाकी हिस्सा आपको सुना के उसको इलैबोरेट भी करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कमाल की गहराई है और रूमी इसमें समाये हुए हैं। रूमी हम सब के लिए, यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ आज कोई हम 40 एक लोग ऑलरेडी बैठे हैं फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कहाँ से हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सिर्फ रूमी के नाम की वजह से हम यहाँ जुड़ गए हैं। और जिन तक कैफे स्पिरिचुअलिटी की, अनु की या मेरी पहुंच होगी, वो लोग जुड़े हैं। पता नहीं कितने और भी लोग होंगे जो जिनको पता चले तो वो भी यहाँ आना चाहेंगे। तो ये जो पावर है रूमी की, रूमी एक ऐसा कमाल का जिगरी दोस्त महसूस होता है हमें, जो कि हमारे दिल को अपील करता है, हमारी रूह तक पहुंच जाता है और कहीं हमारे बहुत गहरे तक हमें सींच देता है। और उसकी कविताओं में इतनी यूनिवर्सैलिटी मिलती है, इतना सार्वभौम तत्व है, इतनी ज़्यादा यूनिटी है कि हम उसको सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई सत्रों पे, कई सफ़ों पे, कई लेवल्स पे महसूस कर सकते हैं। अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस ह्यूमन बीइंग्स, अक्रॉस जेंडर्स, संस्कृतियों और मनुष्यों के आर पार हम, और वो लोग भी जिनका कविता से कोई लेना देना नहीं है, जो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि हमें कविता समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, वो तक रूमी को नहीं, ऐसा मैं नहीं मानूंगा, पर कोई बात नहीं। हम में से कई लोग होंगे जिनका दैनिक जीवन में शायद कविता से कोई लेना देना ना हो, पूरा हफ्ता बीत जाता हो, किसी फिल्मी गीत के अलावा कविता आपके जीवन में ना आती हो, या आरती करते हो कभी, वो भी कविता ही है, मत भूलिएगा, लेकिन उसमें भी कविता पे ध्यान नहीं जाता, संगीत पे ध्यान जाता है, या गायक पे ध्यान जाता है, या गायिका पे ध्यान जाता है। तो जिन लोगों को कविता भी पसंद नहीं है वो भी रूमी को पसंद करते हैं और अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं। और ये एक ऐसा प्रेम प्रसंग है, मैंने पाया है भारत और हिंदी और उर्दू संस्कृतियों को जानने वाले देशों में तो ठीक है,
अमेरिका जैसे देश में, वेस्ट में, जो कि इतना मटेरियलिस्टिक है, वहां भी रूमी मैं समझता हूँ पिछले कोई आधे शताब्दी से अमेजिंगली पॉपुलर कवि बने हुए हैं। और जो मैंने बातें कही वो सब वहाँ के लोगों पे लागू होती हैं। तो वो जो प्रेम प्रसंग हम रूमी के साथ महसूस करते हैं, वो बहुत व्यक्तिगत होने के साथ बहुत समष्टिगत भी है। इट्स वेरी यूनिवर्सल, इट्स उसमें हमारी पूरी सृष्टि भी समा जाती है। और हमें लगता है रूमी हमारा एक बहुत प्यारा सा कॉन्फिडेंट है, एक सोलमेट है जो हमारे साथ चल रहा है, जिसके पास हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, जिसके पास दुख के समय पे एक कंधा है जो हम उसके कंधे पे सिर रख के रो सकते हैं, या जिसकी गोद में सर छुपा के हम सुकून पा सकते हैं। सो वो हमें बहुत अलग अलग रूपों में मिलते हैं। और इतनी गहराई है, इतनी विराटता है, the immensity and the magnitude is amazing, and then बहुत मिठास है। तो कविता में अगर मिठास और सहजता ना हो तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन तत्व देने में पीछे रह जाएगी। लेकिन रूमी की कविता में ये सब मिलता है। यहाँ तक कि अगर हम इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो रूमी हमें वेदांत तक की बातों में खड़े हुए मिलते हैं। जो बातें हमारे उपनिषदों में कही गई जिन्हें हम वेदांत बोलते हैं, वहाँ तक वो सारी चीज़ें भी कई बार हमें रूमी में एको करती मिलती हैं। So this is the short very बोले ओरिजिनली किस भाषा में लिखा है रूमी ने? ओरिजिनली किस भाषा में? पर्शियन। वो फारसी में लिखा है। तकरीबन आज से 700 साल पहले 14वीं शताब्दी में रूमी हुए थे, और फारस में ही होते थे, पर्शिया में, और वहीं का उनका सारा जीवन है। आप चाहेंगे तो बाद में मैं थोड़ा सा उनके जीवन की कहानी भी सुना दूंगा, लेकिन हाँ, इट्स ओरिजिनली पर्शियन। सो the only catch is that what we meet the Rumi that we meet is only through his English translations, and primarily that is through the signal translation of Coleman Barks. So और बहुत सारे इल्जाम भी लगे हैं, वो भी अगर आप में से कोई चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों के, हमारे यहाँ देहाती भाषा में बोलते हैं कि वो दिल में हुड़स उठती है, तो कई लोगों के अंदर कुछ एक हुड़स सी उठती है, एक भड़ास सी होती है कि नहीं साहब, रूमी ये नहीं, रूमी वो नहीं, वो एक धर्म विशेष और सेकुलर नहीं। तो उस पर भी हम कभी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर कोलमन बार्क्स ने उनको पाया, और जैसा भी पाया उन्होंने अगर उस ट्रांसलेशन को हमारे सामने रखा और हमें रूमी ऐसे मिलते हैं, तो उसमें हम रूमी को भी क्रेडिट दें और कोलमन बार्क्स को भी दें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भीतर वो कितना समा जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। सो एक सीमा पे जाके रूमी भी इंपॉर्टेंट ना रह जाए। रूमी हमारे अंदर जो समा गए वो हम हो गए, यानी मैं ही रूमी हो गया, रूमी मैं हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं आपको बहुत प्यारे से रैपिड फायर राउंड में से ले जाना चाहूंगा, क्योंकि वो पसंद आता सबको। लेकिन उससे पहले एक कहानी, और ये कहानी बहुत बहुत कमाल की है, बहुत पावरफुल है। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, फिर सुनने में मजा आएगा। फिर से कोई भी कहानी अगर सुन रहे हैं तो मेरा उसमें ये मेरी लर्निंग रही है कि उस कहानी में हम कितने हैं, या वो कहानी हम में कितनी है, ये ढूंढिएगा। कहानी सच कितनी है और झूठ कितनी है उसमें न पड़िएगा। वो दंत कथा भी हो सकती है, वो किरदंती भी हो सकती है। इट कुड बी हेयरसे, लेट इट बी हेयरसे, बट उसमें पावर तभी मिल सकती है कि आप खुद को उसमें ढूंढे और उसको खुद में ढूंढ लें। तो रूमी हुआ करते थे फारस में, और यानी पर्शिया में, और एक समय पे वेस्टर्न यूरोपियन रेनेसांस से पहले पर्शिया में रेनेसांस का एक दौर था। और अगर मैं 3 नाम लूं तो उमर खयाम, रूमी और हाफिज, इन 3 नामों से आज का लगभग हर दानिशमंद इंसान और थोड़ा बहुत अवेयर इंसान परिचित है, और इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित भी है, थोड़ा बहुत तो मिला हुआ है उमर खयाम के रुबाइयों से, रूमी और हाफिज की कविताओं से। और रूमी और हाफिज, उमर खयाम पहले हुए 11वीं शताब्दी में, और रूमी 13वीं में, और हाफिज 14वीं शताब्दी में। तो 401 साल का पोइट्री का रेनेसांस पीरियड हम कह सकते हैं फारस के अंदर, पर्शिया में। और कमाल का दौर था जब इस लेवल के लोग लिख गए और ऐसा कुछ हमें दे गए, जो आज 700-800 साल बाद भी टाइमलेस है, स्पेसलेस है और कल्चरलेस है। मतलब इट इज बियॉन्ड कल्चर, इट्स क्लासिक, रियल क्लासिक।
So it's amazing actually. And रूमी एक यंग, काफी यंग इंसान होते होंगे जब उनकी मुलाकात अपने उस्ताद गुरु शम्स से हुई। शम्स ऑफ तबरेज, तबरेज भी वहीं पे एक जगह है, तो शम्स तबरेज, तबरेजी भी बोल सकते हैं उनको। और शम्स एक बहुत ही कमाल के इंसान थे इस सेंस में कि वो एक परिंदा कहलाए जा सकते हैं। he was a free bird. He could be notorious also for his freedom. और बिल्कुल जैसे आज हम बोले बिंदास अंदाज में जीते थे, किसको क्या बोलना है, क्या बुरा है, क्या भला है, कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी। अपने में, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी अपने जैसा हूँ, उस अंदाज में वो जीते थे। और दोनों, शायद दोनों अपने अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहे थे। रूमी एक उस्ताद, एक गुरु ढूंढ रहे थे, और शम्स एक मास्टर स्टूडेंट ढूंढ रहे थे, जो कि शिष्य तो हो लेकिन बाद में मास्टर हो जाए। तो शायद ये यर्निंग, ये लॉन्गिंग दोनों की थी। और ये मिलते हैं जब तो रूमी बहुत यंग हैं, शायद 21-22 साल के हैं, और रूमी ने कुछ लिखा है, काफी कुछ लिखा है। आज हम रूमी की जिस क्रिएशन से वाकिफ हैं और जिसके हम टुकड़े 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 ही मतलब इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं, वो रूमी की मसनवी है। सैकड़ों उसमें कविताएं हैं और हजारों शेर बोलें तो, या जो भी कपलेट्स जोड़ जोड़ के वो लंबी लंबी कविताएं बनती हैं। मसनवी अपने आप में एक लंबी कविता हो गई, उसमें कहानियां भी आती हैं, सब कुछ आता है। तो रूमी ने काफी कुछ लिख लिया था, और जब उन्होंने शम्स के बारे में सुना था तो वो ढूंढते ढूंढते, और शम्स भी आते हैं। रूमी बिलोंग टू, लेट मी टेल यू, रूमी बिलोंग टू अ वेरी एलीट अपर क्लास ऑफ पर्शिया, एंड इतने एलीट थे कि जो वहाँ के अमीर थे, अमीर यानी वहाँ के शासक, वो भी रूमी के स्टूडेंट, और रूमी उनको हक से कुछ बोल सकते थे। तो योग्यता में भी बड़े हो गए, और रुपए पैसे और धन संपदा में और वैभव में भी नोबल क्लास से आते थे। और शम्स का तो आलम यह था कि वो आज कहाँ हैं, कल कहाँ हैं, बिल्कुल वैगाबॉन्ड, एक बंजारे की तरह। अगर उनका कोई एक, हम सब में जिन्होंने भारतीय संस्कृति को और हमारे टेक्स्ट को, हमारी परंपरा को जाना है, तो हमारे पास एक उपनिषद हुआ है, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, उसमें जो नायक, तो अब हम क्या बोलें, क्योंकि नायक तो हम उसे बोलते हैं जो कुछ बड़े काम करता है, तो उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है रैक्व संयुग्वा, ये उनका नाम है। और अद्भुत व्यक्ति है वो। शरीर पे एक, जिसे कहते हैं कंठ, एक लॉयन क्लॉथ जैसा कुछ लंगोट, उसके अलावा कुछ नहीं, उघारे बदन रहना और बस इधर से उधर घूमना। एक बैलगाड़ी है, उसी में सो जाते हैं, वही उनकी कैरावान है और उसी में चलते रहते हैं। और एक कुत्ता है, वो बैलगाड़ी के नीचे नीचे पीछे पीछे चलता रहता है। इतनी कुल उनकी जो बोले एसेट्स या मूविंग या रियल एसेट्स हैं, और इसके अलावा कोई संपदा नहीं, कहीं रुकना नहीं। एंड ही यूज्ड टू से दैट, जैसे हमारे यहाँ 5 तत्व बोले गए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उनका ये था कि ये सृष्टि वायु से बनी है। तो रैक्को का ये मानना था। तो मैं जहां पाता हूं कि शम्स और रैक्को का कैरेक्टर या व्यक्तित्व तो मुझे एक जैसा लगता है। तो शम्स को जब रूमी मिलते हैं, और बाकी कहानी लंबी है, पर जो घटना मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं उससे आप सब रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम सभी लिखने पढ़ने वाले दुनिया से हैं, और अपने अपने फील्ड में या किसी भी और इंटरेस्ट की वजह से हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, और वो हमारे लिए बहुत अजीज होगा। चाहे आपने कोई पुस्तक लिखी हो, चाहे आपने कोई आर्टिकल लिखा हो, चाहे प्रोफेशन में कोई रिपोर्ट लिखी हो, चाहे अखबार में कॉलम लिखे हो, लेकिन वो जो कविता लिखी हो, वो जो कुछ भी आपने लिखा है, वो आपके लिए बहुत अजीज होगा। ऐसा कुछ जो रूमी ने लिखा हुआ था, इट वॉज अ गुड बिग मैन्यूस्क्रिप्ट। जब वो शम्स को मिलते हैं तो आह्लादित होके कि अब ये मेरे उस्ताद होंगे और इनके सामने मैं अपना ये क्रिएशन प्रस्तुत करूं, और इस पे मैं इनसे कुछ, हम उम्मीद तो तारीफ की करते, कुछ तारीफ मिले, सम एप्रिसिएशन, और एट मोस्ट इस्लाह बोलते हैं हम उर्दू में, कुछ करेक्शन कर देंगे गुरु। और ऐसे करके
वो मैन्यूस्क्रिप्ट ये रूमी उनको देते हैं। ये लोग किसी वाटर बॉडी के किनारे बैठे हैं, दे सिटिंग बिसाइड सम रिवर और सम रिवर, और शम्स उसको ऐसे देखते हैं, मतलब ही जस्ट डजंट इवन प्रॉपरली लीव थ्रू इट, and without even reading it properly, giving it a glance, and he flings it across into the river. ये मत भूलिएगा कि वो हस्तलिपि का जमाना था और स्याही से लिखा जाता था सब कुछ, यानी स्याही पे एक बूंद भी पड़ जाने से सब मिट सकता था। तो जब सारी हस्तलिपि यानी पूरी पांडुलिपि, पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट ही पानी में फेंक दी गई, तो अब क्या बचा? उसे तो रिट्रीव भी नहीं किया जा सकता, किसी डूबते इंसान की तरह बचाया भी नहीं जा सकता। आज का अगर कोई लेजर प्रिंटेड पेपर हो तो हम निकाल के उसे सुखा सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि उस युवा रूमी पे क्या गुजरी होगी। अगर आप अपने को उस जगह रख सके तो आपको भी शायद इस वक्त गूज़बम्प्स, रोमांच आएगा, या आपके साथ ऐसा हुआ कभी, तो सोच के देखिए। और वो रूमी की मोहब्बत थी शम्स से कि उन्होंने उफ भी नहीं की। He did not complain, he didn't say anything. जी। मुझे पता क्या याद आ रहा था, यूजी कृष्णमूर्ति ने अपने सारा लिखा हुआ एक दिन आग लगा के सब कुछ आग में डाल दिया था। ये मैंने Everything that he had written himself. ये मैंने भी And सुना। all those people who used to follow him, they were shocked. And he said, बाद में इन चीजों के ऊपर लड़ाई होगी, so I'm going to burn it right now. So there is only one book of UG that is available, in which he has said in the beginning that whatever I had to say has been said in this. Don't ask me any questions because I have nothing more to say. और जैसे सबका वो होता है ना कि copyright law, do not copy, do not recreate. He has said, take any part of it and recreate in whichever manner you want and use it anywhere you want. Beautiful. So ये जो शम्स की जो freedom वाली spirit है ना, तो UG was kind of Shams and Rumi combined in one. अपना इस लिखा हुआ जला दिया सारा। एक और शख्स हम जिन्होंने जाना है, नाम सुना होगा, गुरजीएफ इन जर्मनी। सो वो भी कुछ इसी मिजाज का इंसान था कि आपकी जो सबसे कीमती चीज है वो आपसे ले लेगा, उसे नष्ट कर देगा या छीन लेगा, और फिर देखेगा कि आप कैसे सरवाइव करते हैं, उसके बाद आप कैसे उसके सामने रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दैट रिस्पॉन्स वुड क्वालिफाई और डिस्क्वालिफाई यू फॉर बीइंग अ डिसाइपल और व्हाटएवर। सो रूमी ने शायद ये बोला भी हो, मुझे नहीं पता रूमी ने क्या बोला, शायद बोला हो कि भाई उस्ताद आपने तो इसको पढ़ा भी नहीं या जो भी ठीक से देखा भी नहीं। तो शम्स का बस यही जवाब था, इसमें पढ़ने लायक कुछ था ही नहीं। This novel 40 Rules of Love, राइट, इसमें रूमी और शम्स के रिलेशनशिप के बहुत सुंदर बहुत प्यारा दिए हुए हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा लव अफेयर जो शुरू होता है, वो ये घटना है उसमें। और कभी जब मैं भी लगभग उसी उम्र का था और अपना करियर साइंस की पढ़ाई करके अखबार में लिखने से शुरू कर रहा था प्रोफेशनली, तो मैंने बहुत दिल से, बहुत पैशनेटली कुछ लिखा। काफ़ी बड़ा लेख था वो, और मेरे प्रिय कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन पे लिखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस रूमी वाली घटना से रिलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सेम मेरे साथ हुआ। उस उम्र में मैं भी 20-22 साल का रहूँगा, 22-24 साल का, और मैं रूमी को तब तक नहीं जानता था। मैं खलील जिब्रान से मिल चुका था प्रॉफिट के जरिए 18-19 साल की उम्र, पर रूमी को नहीं जानता था। इंटरनेट था नहीं, तो जब कोई किसी से कुछ मिल जाए हम उतना ही अवेयर और एक्सपोज हो पाते थे। तो वो लेख एक दिल्ली के एक अच्छे बड़े अखबार में, उसके रविवासरीय परिशिष्ट में यानी संडे मैगजीन में, पूरा अखबार में पूरा पेज उसको डिवोट हुआ, क्योंकि काफ़ी बड़ा था और मैंने 2-3 चित्र भी बनाए थे, निराला के रेखांकन थे, वो भी उसमें छपे। और कोने में, बिल्कुल कोने में छोटी सी जगह बची होगी, तो उसमें समझिए एक कॉलम में छोटा सा चटपटे चटकारे फिल्मी खबरों के उतना सा 2 इंच की जगह, बाकी पूरा पेज मुझे डिवोटेड था। और मैं तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि इतनी, अभी तो मेरा करियर ही शुरू हुआ है और ये हो गया। जिनको मैं अपना उस्ताद मानता था भाषा में, साहित्य में और लिखने में, ऐसे मेरे मित्र हैं, मुझसे थोड़े बड़े हैं। और जब मैं देहरादून वापस गया, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, और मैंने बड़े ही खुशी के साथ और मतलब किसी
एक्सपेक्टेशन के साथ वो उनके हाथ में दिया, उन्होंने खोला, और खोलने के बाद उन्होंने उसको मोड़ा और उस 1 इंच पे आ गया और वो फिल्मों की बातें करने लगे। मैंने कहा रमाकांत तुमने तो इसको पढ़ा भी नहीं ठीक से। कहता है इसमें पढ़ने लायक कुछ है ही। आज मैं रिलेट कर सकता हूँ कि शम्स ने रूमी को क्या कहा था और क्यों कहा था। इट्स अमेजिंग। मतलब मुझे उस वक्त गुस्सा भी आया, फ्रस्ट्रेशन भी हुई कि यार मैंने जान लगा दी इसको लिखने में, महीना मेरा लग गया और इस इंसान के लिए इसमें कुछ नहीं है। आज मैं जान सकता हूँ उसमें वाकई कुछ नहीं था। कहते हैं वो उस घटना ने रूमी को रूमी बनाया, और उसके बाद रूमी ने जो कुछ भी दोबारा लिखा है, अगर चूंकि अनु ने भी 2 उदाहरण दिए हमें, तो हमने ऐसा सुना है कि न्यूटन का भी जितना रिसर्च वर्क था, उन्होंने जितना काम किया हुआ था, और वो दौर तो था मोमबत्तियों और लालटेन का दौर था, तो एक दिन जब न्यूटन अपने घर वापस आते हैं तो आग लग चुकी, और जितना उनका काम था मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह वो टेबल पे ही रखी हुई थी, और उनकी नजर अचानक से गई तो वो मोमबत्ती गिरी पड़ी थी, यानी जो कैंडल जल रही होगी वो गिर गई, और उस कैंडल से सारा कुछ जल गया और मैन्युस्क्रिप्ट पूरी नष्ट हो गई। तो कितने बरसों का न्यूटन का वो काम रहा होगा। और ये कहानी मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि ये हमें स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत एम्पावर कर सकती है। हमारे स्कूल की कक्षा 3 की जो इंग्लिश की रीडर होती थी उसमें ये कहानी थी, तब से मेरे लिए पेशेंस के मायने डिफाइन हो गए थे और बदल गए थे। तो न्यूटन जब घर में घुसते हैं और ये सब देखते हैं तो एक बार को तो उनका दिल धक से रह जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी नजर पड़ती है सामने अपने प्रिय कुत्ते पे, जो उनका पेट पप था घर में, और वो बहुत डरा हुआ सच्चा हुआ सा बैठा था। जला तो नहीं, बच गया, घर नहीं जला, टेबल पे जो कुछ सामान था वो जल गया था। और इतने में न्यूटन द जीनियस ही वाज, ही कुड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि इस कुत्ते की आंखों में जो डर और जो कुछ भी है, जो ग्लानि है, उसका मतलब ये है कि ये मोमबत्ती इससे गिरी है। और उस कुत्ते को पता था कि मेरे मालिक के लिए ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, जिसे वो रात दिन मोमबत्ती की रोशनी में बैठ के करते रहते हैं, और आज मुझसे वो सारा जल गया है। तो न्यूटन जस्ट चेंज दैट मोमेंट, मतलब उसी मोमेंट शायद उनके अंदर की सारी एनर्जी बदल गई, और अपना सारा क्षोभ, सारा फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ ड्रॉप करके वो अंदर आए और उसको बहुत प्यार से बुलाया, उसको अपनी गोद में लिया, वो सब चाह रहा था, और उसको बैठ के प्यार करते रहे बिना कुछ बोले, और उसको ये ढाढ़स दिया, ये हौसला दिया कि कोई बात नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, जो कुछ भी हुआ है हम उसको दोबारा बना लें। ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हुए हैं। आज हमें नहीं मालूम कि वो काम न्यूटन का शायद उनको दोबारा याद भी आ पाया हो कि नहीं, क्योंकि प्रिजर्व करने का तो कोई तरीका ही नहीं था। वी टॉकिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। सो अमेजिंग पीपल। चलिए हम रूमी पे लौटते हैं, और मैं आपके सामने कोई 12 एक रैपिड फायर के तरीके से मैं उनकी ताकत क्या है, उनकी पावर क्या है, द पुल ही वील्ड्स ओवर अस, उसके 12 एक एस्पेक्ट्स रखता हूँ, और प्लीज रिलेट करिएगा इनसे, और बताइएगा उसके बाद रिस्पांस में, चैट में, कि इनमें से कितने से आप भी रिलेट करते हैं। 12 में से 12, या 12 में से 10, या 12 में से 8, 6, जितने भी। सो वील बी एबल टू नो दैट हाउ मच, how true these points are, what I am saying, and how much you can relate to them. So let me present. So that's it. Yes. And essentially, to share the outline, love, live, and liberate has been in the post also. So these are the 3 sections under which we'll be meeting Rumi today. But before that, the power he wields over us. Sorry, some catch here. Just a moment. Yes. Yes, so we are there. So the first is
not only intellectual. His appeal is not only intellectual but heartfelt. He reaches our heart. The second, his poetry has many levels in it. It's not singular or even maximum double. You will find many levels and many layers in it. There's a huge unity in whatever he says, and that takes you to universality. And you can then start relating to this universe and the beingness with some deeper understanding. Rumi appears to you as a dear friend, as somebody who's very close to you. When you read him or remember him, his words, it kind of feels as if grace is descending upon you. The longing and the yearning which in this modern materialistic world you still are roaming around with, find it within you. You find that same longing and yearning deep within Rumi, and you can relate to that more easily. You can relate to your own longing and yearning. He comes across as a bridge across cultures and religions and sects and genders. As I said, जिन लोगों को पोइट्री नहीं भी पसंद है वो भी रूमी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो कोई बहुत ज्यादा पोएटिक होकर बात नहीं करते. And you are able to participate with Rumi in two things. One, his process, and two, your own process. Rumi appears to you as a spiritual guide who's kind of hand-holding you through your journey of life and inner journey. And then it becomes a very personal process for you, which maybe then culminates in a love affair, in a very intimate love affair with Rumi. And that love affair is something which you can only experience and maybe not even explain to anybody, maybe not to yourself, because you don't have words for it. So these were the 12 pointers or relationships with Rumi which I have felt with many people, and these are kind of universal also. But then let's hear you. How do you relate to them? You can write in the chat box, and it'll be nice to hear something from you. Yes, so we have Rekha who's saying 12.12. Please type for everyone so that everybody can relate to, can understand what you're saying. Ranjini, 9, 12.12. Please keep writing, so it'll be nice, it'll be interactive. And throughout the session, please keep it interactive. आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, जो कुछ भी feel हो, लिखते रहिएगा. Pretty much all. Anu is saying, Bikram is saying 11. So slowly you'll find that it's majority for all. So I believe it's not easy, it's not a joke that a person who lived something like 700 years ago is so relevant to us, is so important to us, is such a confidant for us, is so close to us, which is amazing. शायद हम में से बहुत से लोग उनके बारे में और कुछ ना भी जानते हो, बट उनकी एक कोटेशन ही हमारे लिए काफी होती है. 2-4 मीम्स ही हमने देख लिए, वही बहुत होते, वही हमें लिबरेट करने के लिए काफी होते. Thanks to all of you who've responded. Please keep responding, and I'll now take it further that through this session I'll be going into a lot of dimensions of life along with Rumi, my learnings and Rumi's quotations and everything. Because if I'm not sharing my learnings, then it becomes very preachy and didactic, which I don't believe in. So if I'm saying what I have learned, आप देख लीजिए आपके वो काम का है तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो उससे काम चला ही रहा हूँ बहुत अच्छे से. और तीन एक I feel there are
three levels with which you can approach such a session. You could have three levels of purpose. Maybe your purpose could be entertainment. आप सिर्फ मनोरंजन के लिए और मजे के लिए यहाँ बैठे हैं तो आपको मजा बहुत आएगा, अब तक भी आपको शायद महसूस हो चुका होगा. You'll enjoy. बट मजे में एक बात है कि आप उसको भूल भी जाते हैं. So you'll enjoy and you'll forget. Your purpose could be slightly further, and that could be the next level, which is some intellectual hunger or intellectual curiosity. But है फिर भी वो एक बौद्धिक खुजली ही. अच्छा यार, रूमी ने क्या कहा, ओहो खलील जिब्रान भी है, ओहो आज गुरजेफ का नाम सुना यार, पता करो इन्होंने क्या कहा था यार, गूगल करेंगे यार. सो ये सब फैड्स हैं, और फैड भी अच्छी बात है, लेकिन फैड से ना जिंदगी चलती है ना पेट भरता है. सो दैट चॉइस विल बी योर्स. अगर आप इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए हैं तो भी आपको आनंद आएगा, क्योंकि कोशिश मेरी ये है कि वो वाला आपका हिस्सा भी satisfy हो. I am a person who believes in customer delight, and you are all my customers. So unless you go back delighted from the session, I would not have kind of succeeded in my endeavor. And the third purpose could be, the highest or the deepest, is living better, becoming a better human being. In that case, you'll be taking this stuff and applying it in your life. You'll try to experience it. You'll try to taste it. खाने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 स्टार के डिशेस के मीम्स नहीं देखेंगे, उसको बनाएंगे, खाएंगे, या उसके लिए कमाएंगे और उस 5 स्टार में जाके खाएंगे और फिर पता करेंगे कि उसका स्वाद कैसा है, और आप उसको जीने का प्रयास करेंगे. So with this I would kind of submit to you that you can choose your purpose wisely, and इन तीनों में से जिस भी पर्पस पे आप रुकेंगे मजा आएगा आपको, वो गारंटी है. और इसके साथ हम भूमि जो पावर हमारे ऊपर, ओके, सो somebody has written on the purpose point. I think my purpose is here to collect some food for your soul. So then that's great. आप उसको देखिएगा. और फूड का सर ये है परिणशील, that जो हम खाना एक बार खाते हैं वो 2 से 3 घंटे में हजम भी हो जाता है, तो हमें दोबारा खाना होता है, ये मत भूलिएगा. तो आज आप जो भोजन पाएंगे वो बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, 2-4 दिन याद रहेगा, 1-2 दिन याद रहेगा. ये तो रूमी की बातें हैं, शायद मेरे जरिए मिलेंगी. आपको तो अपनी कही हुई बातें पिछले शनिवार इतवार को आप किसी दोस्त को क्या कह रहे थे वो भी भूल गए होंगे. सो थर्ड वाला पर्पस देखिएगा, वो ज्यादा एम्पावरिंग है. Applying it, living it, experiencing it, but that's just an invitation. Kind of खाना हजम जब हो जाता है उसके बाद सारे न्यूट्रिएंट्स ना हर सेल में चले जाते हैं. हाँ, वो तो है. That's also okay. मेमोरी पे इतना ज्यादा जोर ना भी डालें तो चलेगा. ना मेमोरी नहीं, मेमोरी की तो जरूरत, मेमोरी तो सेकंड वाला लेवल है, वो तो इंटेलेक्चुअल है. तो याद नहीं रहा तो चलेगा. हाँ, if you start living it, वो पूरा it gets disseminated in every cell in the body. It's there. आगे एक बात आएगी जिसमें कि बड़ा मजा आएगा आपको, कि कविता को पढ़ना पुल को पार करने जैसा है. भाषा का पुल हम पार करते हैं, लेकिन पुल पार करने से सिर्फ पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती. सो इसको हम जब उस सेक्शन में पहुंचेंगे वहां पे और इसको एलैबोरेट करेंगे. सो थैंक्स अ लॉट. तो राजीव सिक्का जी कह रहे हैं, देन यू मस्ट इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ टुडे सेशन. सर मैंने तो रेसिपी बना दी है, अब आपको उसमें से क्या मिलता है बताइएगा. अब तो मैं इस वक्त तो और नया कुछ पका नहीं रहा हूँ. So I love your responses. Thanks for a beautiful response from Raja Ramji. He says the 3 levels are consequential. I mean, I think yes, they are consequential. One leads to the other till you experience it and live it. Very true. Rajaram, welcome and thanks for joining in. You had said you will join by around 4. Thanks a lot. He's a wonderful friend from Chennai, and we'll talk later. They are consequential. That's why I've kept them in that order, sequentially. Yeah. And thank you very much. So, moving ahead. तुम तो खुशबू हो, सितारों के गुजरगाह हो तुम. जब फूल में से खुशबू निकलती है तो वो कहाँ रुकेगी, वो तो सितारों से भी पार चली जाएगी, क्योंकि तो रोक ही नहीं सकता कोई. तुम कहाँ आओगे इस दश्त पुरस्रार की पहनाई में. ये जो विल्डरनेस भी है, ये जो जंगल भी है,
इसमें तुम्हें कैद करके नहीं रखा जा सकता। कैसे उतरोगे तमन्नाओं की गहराई में? So the poet is taking you to the heights across the stars, beyond the stars, and he's taking you to depths which are the deepest in the human emotional and soul level. कैसे उतरोगे तमन्नाओं की गहराई में? अब जो बात है उसके जरिए हम रूमी से मिलें तो और मजा आएगा। आगे जो ये पोइट्री कहती है, कौन सा लफ्ज है खोलेगा जो दर मानी का, लफ्ज के पार जो देखे तो कोई राह नहीं। लफ्ज यानी वर्ड्स, दर यानी दरवाजा। तो मीनिंग का दरवाजा कौन सा वर्ड खोलेगा? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वर्ड्स तो ऐसे हैं जैसे कि हमने चंद्रमा की तरफ उंगली का इशारा किया, जैसा बुद्ध ने भी कहा है, कन्फ्यूशियस ने भी कहा, that when the wise point towards the moon, the imbecile start looking at the finger and they catch the finger, and for them the finger becomes valuable, and maybe over time we start worshipping the finger. So कई बार शब्दों की पूजा आराधना भी होने लगती है, और हम उन्हीं में, और इंसान की आराधना। So coming back, कौन सा लफ्ज है खोलेगा जो दर मानी का, लफ्ज के पार जो देखे तो कोई राह नहीं, और तुम नब्ज़ पसे लफ्ज से आगाह नहीं। हर लफ्ज के पीछे एक भाव है, एक पल्स है, एक नब्ज है, जिस नब्ज को देख के अच्छे हकीम आपकी सारी बीमारियां जान लेते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट के। तो उस पल्स को जानना जो उस शब्द में छुपी हुई है, जो भाषा में छुपी हुई है, वहां तक अगर हम पहुंच सके, कौन सा लफ्ज है खोलेगा जो दर मानी का, लफ्ज के पार जो देखे तो कोई राह नहीं, और तुम नब्ज पसे लफ्ज से आगाह नहीं। तो अगर हम रूमी से इस भाव से मिल सके कि हम शब्दों में ना अटकें, वही शब्द जो शायद उनके थे, जो कोलमन बॉक्स के जरिए हमें मिले, या जो मेरे जरिए आप तक पहुंचेंगे, उनमें अटकने के बजाय उनके ट्रांसेंड करें उनको और उनके पार जाएं, तो थोड़ा सा आपको मदद हो सके। तो कुछ बात तुलसी ने कही है और कुछ एक आधुनिक शायर ने कही है इसी पे। तो उस शायर ने, सबने ये शेर सुना होगा शायद, कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना यानी आईने के सामने तो मैं हूं और यहां से मैं अपना अक्स देख रहा हूं, लेकिन अगर एक बच्चे की तरह मैं आईने के पीछे जाके देखूं तो वहां कुछ मिलता ही नहीं। तो ये जो अक्स में मैं देख रहा हूं, यानी इमेज में मैं देख रहा हूं, वो कौन है और वो कहां है? ये बड़ी हैरानी की बात है। वी हैव अ डियर फ्रेंड हियर, रेखा, who writes poetry with the pen name of Aina, and Aina is her favorite. So सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो नफ्स के पार जो देखें तो कोई राह नहीं, और तुम नफ्स से पसे लफ्ज से आगाह नहीं। पसे यानी वो नफ्स जो आपको वर्ड्स के पार ले जाए, भाषा के पार ले जाए। और तुलसी ने चौपाई के आधे हिस्से में, यानी अर्धाली में, एक कमाल की बात कही है। इट्स सो प्रोफाउंड। जिमि मुख मुकुर, मुकुर निज पाणी। मुकुर यानी आईना, पाणी यानी आपका हाथ, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। जैसे आपने अपने हाथ में आईना पकड़ा हो और आप उसमें अपनी छवि देख रहे हो, और आपको ऐसा आभास हो सकता है, आप इस भ्रम में हो सकते हैं कि मैंने खुद को या अपनी छवि को पकड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने खुद को पकड़ा हुआ है? क्या आपने अपनी छवि को पकड़ा हुआ है? आप आईने में हाथ डालें, आईने के पीछे हाथ डालें, आपको अपनी छवि कहीं नहीं मिलेगी। वो काम है भाषा का। जिमि मुख मुकुर, मुकुर निज पाणी, गहि न जाई अस अद्भुत बाणी। ये तुलसी ने कहा है। अद्भुत वाणी ऐसी होती है जो हमें लगता तो है हमने आईने की तरह छवि हाथ में पकड़ी हुई है, लेकिन अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ में नहीं आती। ये बहुत कमाल की बात है जो मानक हमें तुलसी ने दिया, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि रूमी हमारे इस स्टैंडर्ड पे पूरे खरे उतरते हैं। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथ अमित आखर अति थोड़े। ये पूरी चौपाई है तुलसी की। सो सम अदर डे व्हेन वी मीट तुलसी। तो moving ahead, and let's start with love. Around 8 aspects related to love. In each, I'll try to share my learnings and then try to share some of Ruby verbatim quote. So my learnings could be as a primer for some of you and could be ignorable for many of you. उन पे ध्यान मत दीजिएगा, रूमी पे ध्यान दे लीजिएगा। पर मैं बात ऐसे ही कर पाऊंगा, इसलिए
मेरे पास और कोई तरीका है नहीं. सो हार्ट, देयर इज नो अदर. ये मैंने रमन महर्षि से सीखा. और जब मैंने कैफे स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन किया तो पता चला कि रमन महर्षि कैफे स्पिरिचुअलिटी के पीछे की शायद सबसे सबसे प्रबल, सबसे फोरमोस्ट ड्राइविंग फोर्स हैं. और उनकी कितनी सारी लीनिएज और उनका कितना कुछ है जो हम उनसे ग्रहण करते रहते हैं. फिर निसर्गदत्ता महाराज हैं, रॉबर्ट एडम्स हैं, और कितने ही और लोग हैं, पापा जी हैं, पुंजा जी हैं, फिर बात मूजी तक चली जाती है. तो इनमें से कुछ लोगों के नाम आप सबने सुने होंगे जो कैफे स्पिरिचुअलिटी से नहीं भी जुड़े हैं. बट दिस देयर इज नो अदर has not been able to be replaced by anything, and I owe it to Raman Maharshi. So everything is made of beauty, and everything is beauty. As Confucius says, beauty is everywhere, but not everybody sees it. तो जब हम ब्यूटी नहीं देख पा रहे होते हैं तो हम शिकायत में होते हैं कि कुछ कमी है यहाँ, there's some lack. And Rumi for one will free you of the feeling of lack. वो आपको मुक्त कर देंगे अगर आप उनके साथ जीते रहें. जीवन में कहीं कुछ लैक है, इससे वो आपको मुक्त कर देंगे. सो एक यात्रा है. Everything that is made beautiful and fair and lovely is made for the eye of the one who sees. And these are the eyes of heart. सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो. बीनाई इज आईसाइट, विजन. सो दिस इज निदा फाजली. सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो. The heart is a sea and language is the shore, what we talked. Whatever is in a sea hits the shore. कई बार हम किनारे पे पड़ी हुई सीपियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं और उनको ही सब कुछ मानने लगते हैं. कई बार समुद्र में उठी एक लहर ही हमारे लिए बहुत सुंदर होती है, लेकिन सागर तो सागर है. उसमें जाने के लिए, उसको जानने के लिए हिम्मत चाहिए. So Rumi for one will invite you to be more and more courageous, which is what equal to love also. Without courage you can't love, and without love you can't have courage. Heart is the size of an ocean. Go and find yourself in the hidden depths. So these are the invitations from him. It's up to you which invitation you want to. अगर आप में से कोई भी जब भी चाहें मुझे बाद में कांटेक्ट करना. सो जस्ट अ मोमेंट, दिस इज गॉट स्टक समवेयर. तो एक बहुत प्यारी सी कविता है, उसका टाइटल ही इनविटेशन है, और द माउंटेन ट्रैवलर करके एक उसका कंपेंडियम है. सो आप मुझे बाद में अगर पर्सनली कांटेक्ट करें तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा. इट विल बी समथिंग अमेजिंग, बट दैट विल बी समथिंग ऑफ एन इनविटेशन व्हिच रूमी इज इनवाइटिंग यू. Just a moment. I'm somewhere. ये होता है साहब, ये प्रेजेंटेशंस में होता है. और मर्सी को दोस्त बनाइए, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात रूमी में आगे आएगी कि कि आप हार्मनी की बात बहुत अच्छी लगी थी. मर्सी को दोस्त बना लिया उन्होंने. हाँ बिल्कुल, रेखा ने बहुत प्यारी बात कही थी. और हम क्या करते हैं कि हम हार्मनी ढूंढते रहते हैं, और हार्मनी जब भी कभी कॉम्प्रोमाइज होती है तो हमें लगता है गड़बड़ हो गई. तो लाइफ इज ऑल एनकम्पासिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लाइफ में नहीं है. जैसा कि हमारे यहाँ महाभारत में बोला गया है कि जो कुछ महाभारत में वो इस जीवन में, और जिस जीवन में नहीं है वो महाभारत में नहीं है. सो अगर आगे नहीं जा रहा है then you can stop screen sharing and then start it again. अच्छा, हाँ, that's a good thing. वाह, ये जो रिबूट था मैं भूल गया था. इसको हम लोग हिंदी में बोलते थे कि जूता या लात दोबारा मारी जाए, मतलब.
Yes, I hope we'll be there. Nahi, Rekha ji, I think there's some other catch here. Let me stop the screen share and we'll keep Let's talking. look at you. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है. Just a moment. ये मैं इसको I'm just changing the view here and हमने आप पे स्पॉटलाइट डाल दिया, आप सबको दिख रहे होंगे. हाँ, so somebody can help me with those. क्या हेल्प चाहिए? पता नहीं, मैं भी इसको बस I'm just trying to meet it. Yes. सारी ये प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी बच्चों ने करके दी थी क्या? नहीं, बनाई तो मैंने ही है, लेकिन ये ऑनलाइन पे है एक्चुअली. अच्छा. हाँ, तो वो मुझे लगता है इसकी जो एक जैसे बोले मैरिज है ना ऑनलाइन पे, एक मेरे सिस्टम की और ऑनलाइन की, वो कहीं उसमें ब्रेक सा आ गया है या दो में से कोई एक टूट गया है. तो इससे पहले कि ये लोग डिवोर्स फाइल करें, मैं चाहता हूँ इनको चेंबर में बात करके इनकी मैरिज बचा दी जाए. So sweet. So sweet. नहीं तो संबंध तोड़ना तो बहुत आसान है. उसमें क्या है. जी, so I think I'm with you and I think now I can present share the screen once again. So thanks for bearing and मैं आगे से इसका कुछ देखूंगा, कोई तोड़ इसका भी सोचूंगा क्या हो सकता है. जी, so there we were and we move ahead. And, talking of beauty, this is what I learned from few of these masters, that जिसे हमारे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में भी अभिव्यक्त किया गया है. निश्चित रूप से सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, और वो सबके भले के लिए भी हो. दिस इज मोस्ट लाइकली in harmony with or in translation of the true, the good and the beautiful of the Western thought. तो वो सभी के भले का भी हो और वो सुंदर भी हो. तो सुंदरता तक जब किसी चीज को लाया जाता है तो उससे पहले उसमें सारे डिटेल्स और काफी हद तक they've been taken care of. So making beauty necessary and necessity beautiful has been a personal endeavor with me, and Rumi helps me a lot in that. And there's something so beautiful he says, let the beauty of what you be what you do. And the only lasting beauty is the beauty of heart. इसके अलावा कोई और सौंदर्य है ही नहीं, क्योंकि ये बात बहुत कमाल की है. ऐसे तो हम सब ओशो को थोड़ा बहुत जानते ही हैं, लेकिन ओशो ने ज्यादातर किसी न किसी विषय पे या किसी ग्रंथ पे बोला है, किसी महापुरुष पे बोला है, किसी बुद्ध पुरुष पे बोला है. एक बात जो ओशो की अपने आप में बहुत कंप्लीट है और जो लगता है उन्होंने खुद बोल दी, बहुत कमाल की, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा. कितना सौंदर्य है कि इस जगत में, कितना आलोक है और कितना आनंद है. काश हमारे पास देखने वाली आंखें हो और ग्रहण करने वाला हृदय हो. बस यही है जीवन, कि हमारे पास देखने वाली आंखें हो और ग्रहण करने वाला हृदय हो. The acceptance comes after deception or when we've been habitual of rejection. And as Rumi himself says that poetry can be dangerous, क्योंकि उसके जरिए हमें ये महसूस होता है कि हमने नदी पार कर ली.
लेकिन असल में तो हमने सिर्फ पुल पार किया होता है, लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश का, हम में से सभी लोग इस पे कभी ना कभी गुजरे होंगे और हमें लगा होगा हमने गंगा पार कर ली, लेकिन असल में तो नदी पार होती है तैरना सीख के, पानी में उतरने का डर खो के, भंवरों से लड़ने की हिम्मत पैदा करके, पानी में जो मगरमच्छ और खतरनाक जानवर हैं उनसे भी अपने डर को बियॉन्ड ले जा करके, स्टेमिना बना के, पानी में भीग के, डूब के और पता नहीं कितनी बार उबर के जब हम उस पार पहुंचते हैं, नदी तो तब पार होती है। पुल पार करने से तो सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है। ये जो पंक्तियां हैं बहुत प्रिय कवि हैं, नरेश सक्सेना उनकी है, और इसे आप जीवन में हर जगह लागू होता देखेंगे कि जब भी हमने किसी चीज को कहा सुनी में कर लिया, हमें लगता है वो पार हो गई, हमें वो चीज आ गई, लेकिन उस चीज को जीना, उसमें से गुजरना और उसमें पूरी तरह उतरना, वो एक अलग खेल है। सो ही रिमाइंड्स अस कि हम सभी शायद एक ना एक दौर में सारी दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन wise are those people who start focusing on changing themselves? And he reminds us about grieving, that nothing is lost. Nothing is lost. Whatever you feel you've lost comes around in another form. And apart from the physical or material losses, please let it be applicable to the loss of a dear one also. And I'll once again recount one of my favorite words. फूल कहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं लौट आते हैं। सो वो फूल बन के फिर किसी और बगीचे में, किसी और गमले में, कहीं और तो खिलेंगे ही। Acceptance is powerful. Acceptance empowers. See if you can more and more bring it in your lives. There is a certain methodology which I request friends to follow. Do you have the courage to listen to anything new which maybe Rumi is saying or which maybe I am expressing? अगर ये पहले लेवल का करेज आप पा लें सुनने का, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम दुनिया में सुनने से ही अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि हम शायद डर जाते हैं कि पता नहीं क्या नया सुनने को मिल जाए और हम उसे गवारा ना कर पाए। अगर आप सुन पाएंगे तो अगले लेवल पे पहुंचेंगे। Are you able to see and accept the evidence life is presenting in front of you? Praman, pramanikta. And if you are able to cross these two levels of listening and seeing totally, then are you ready to feel and experience deeply? Experience whatever is happening deeply in your totality of awareness. Then only we'll be able to maybe imbibe whatever people like Rumi say, and then they take us to universality and abundance. So this has helped me. And then he reminds us, shine like the whole universe is yours. And then maybe we're looking at the wrong place. We're looking at the wrong corner. देखिए, शायद वो गहरे जड़ों में हो जिसे हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम पत्तों को पानी दे करके सोचते हैं कि पेड़ हरा भरा हो जाएगा। There is something so beautiful which takes us back to the Vedantic expression, or what Raman Maharshi has said. There is no other. There is actually no other. मुझे तो इससे बीटल्स की भी याद आ गई। जी बिल्कुल। and they had a deep connection with India and Rishikesh and everything. जी। एंड एक मैं हिमाचल में कहीं गया था, वहां भी उनके एक जगह बनाई हुई एक मंदिर है, उन्होंने वहां विजिट किया और कुछ था, तो अच्छा है जैसे भी। एंड देन रूमी टेक्स अस टू सेल्फ लव। लव योरसेल्फ, जस्ट लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करना सीखना है तो आप रूमी से मिलिए, और खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे तो रूमी आपके लिए एक इंटेलेक्चुअल भर रह जाएंगे। सो फॉल इनटू लव। एंड अ वंडरफुल line which I learned from my son when he was in standard 5, he used to write in his diary. I don't know where he got it from. Dig a pit, dig a hole, fall into it, call it love.
So, so it's not easy, but it can be learned. Fall into love. You fall into love, you're in a pit only. Yes. It is So, the other way around as well. So it's the only bridge between. देखिए अलग अलग फोर्सेस हैं, साइंसेस में हम उनको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं, और भी उनके नाम हैं, द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, और भी हम तरीके से अलग अलग फोर्सेस को बोल सकते हैं, बट कुल मिला के ऑल द फोर्सेस आर पुल ओनली, दे आर पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और उसे इंसानों में अपने जीवन में हमने लव का नाम दे दिया. सो वी आर टॉकिंग ऑफ द सेम पुल व्हिच इज कीपिंग दिस वर्ल्ड टुगेदर. But love is that fragrance, जो फूल की फ्रेग्रेंस की बात कर रहे थे ना रूमी शुरू में, वही है love. ठीक कह रहे हैं आप. And I would love to keep hearing from you. आप बीच में प्लीज कुछ लिखते रहें चैट में. मैं तो बोलती रहती हूँ. I'm sorry, I find it easier to speak than to. हाँ बोलिए प्लीज. कोई आप में से कोई भी बोलना चाहे अपने को अनम्यूट करके बोलिएगा. It will be nice to have it interactive. So the whole universe is contained within a single human being, you. इस पे हम बाद में भी जाएंगे, बिकॉज एक और सेक्शन में हम इस पे आएंगे. अभी के लिए इसको हम लव से ही रिलेट कर रहे हैं. सो दैट आप में भी यही आ गया, whole universe is contained. बिल्कुल वही वेदांत वाली बात. So he doesn't say single human being, it says the whole universe is contained within you. बिल्कुल, you are the whole universe. बिल्कुल. You're not this limited body and limited mind, you are the whole universe. That's right. वो कबीर को हम याद करें तो कबीर ने एग्जैक्टली यही बोला. अब कबीर के समय पे हम इसको उलट बांसी, कई लोग जो कबीर को नहीं जान पाए या नहीं समझ पाए, उन्होंने इसको उलट बांसी का नाम दे दिया. हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए. ये तो सीधी बांसुरी है कि बूंद अगर समुद्र में समा गई तो कबीर कैसे ढूंढेगा. कबीर ढूंढते ढूंढते खुद ही खो गया. बूंद समुद्र में समा गई और नहीं मिल सकती. देन कबीर एक्सप्रेसेस द नेक्स्ट दोहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, समद समाना बूंद में सो कत हेरा जाए. अब समुद्र जब बूंद में समा गया, यूनिवर्स आप में समा गया, तो आप कैसे उसको ढूंढ सकते हैं. और ये वही वेदांत की बात है. और अगर आप चाहें तो मैं आपको शायद आगे आने वाली थी बात, बट यहीं पे बोल दें. वेदांत जो कि फॉर नॉट एवरीबडी, बहुत से यहाँ गुणीजन हैं जो मुझसे ज्यादा भी जानते होंगे, बट सभी के लिए मैं इतना बता दूं कि वेद जो हमारे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट बोले जाते हैं, हमारी मनीषा का एक कमाल का विस्फोट हुआ था वेद के रूप में हजारों साल पहले. वेद के बाद हर वेद की परंपरा में ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, और अंत में उपनिषद है. सो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद. उपनिषद को हर वेद का वेदांत बोलते हैं, तो उपनिषद आर कॉल्ड वेदांत. यानी वहां आकर वेद की परंपरा का अंत हो गया. और ये श्रुति परंपरा थी, लिखित में नहीं होती थी, मौखिक चलती थी, गुरु से शिष्य को, पिता से पुत्र को, ऐसे. तो इसमें हमें चार, वेदांत में या उपनिषदों में हमें चार महावाक्य मिलते हैं. ये महावाक्य मंत्र ऋचाओं से भी आगे हैं. और ये चार महावाक्य हमें इस बात पे, जो कि यूनिवर्स इज विद इन यू, या हेरत हेरत हे सखी, यहां तक लाने की बात करते हैं. और पहला है उनमें से जो हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, और वो है तत्त्वमसि, जिसे हम दाउ आर्ट दैट. सो हम इसको रमन महर्षि से भी लिंक कर सकते हैं, जिसमें वो इंक्वायरी की बात करते हैं. और फिर हम निसर्गदत्त महाराज से दाउ आर्ट दैट, यू आर दैट. दूसरा है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि. ये हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, यानी मैं ही ब्रह्म हूं. इसमें मैं आ जाता है, बाकी तीनों में मैं आएगा, पहले वाले में दाउ आर्ट दैट. सो इसके बाद है तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ये जो अवेयरनेस है, द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस विच इज राइट नाउ मेकिंग अप यू, मी एंड द एंटायर प्लेस. अगर इसको आप प्रज्ञान के माध्यम से समझ गए, यानी विजडम या सेल्फ के माध्यम से इस पे आ गए, तो ये तीसरा महावाक्य है. और फिर चौथा है वो हमें मांडूक्य उपनिषद में मिलता है. एंड इंटरेस्टिंगली, दोज ऑफ यू हु मे वांट टू, मांडूक्य उपनिषद इज वन ऑफ, out of all the Upanishads, out of all the Vedant, is the tiniest compendium. आप शायद विश्वास ना करें
कि वो सिर्फ और सिर्फ 12 श्लोक का है, 12 ऋचा मात्र। यानी अगर एक A4 पेज पे लिखा जाए तो मांडुक्य उपनिषद समाप्त हो जाएगा। यहां तक कि उसकी पावर ऐसी कही जाती है कि उसमें ओम के बारे में और ओम की पावर का बहुत वर्णन है, और उसकी अपनी अंतर्निहित पावर ऐसी बोली जाती है कि राम से जब हनुमान ने पूछा कि मोक्ष पाने के लिए आप कोई एक ग्रंथ बताएं, तो राम ने कहा कि अगर एक ग्रंथ चाहिए तो मांडुक्य उपनिषद काफी है। फिर उसके बाद अगर आप उससे ना मोक्ष पा सके, मुक्त ना हो सके, तो फिर राम गिव्स अ लिस्ट ऑफ समथिंग लाइक 108 उपनिषद, फिर आप पूरे टेक्स्ट पढ़िए। सो द चॉइस इज योर्स। Murli one of our Cafe Spirituality members, Shobha Jaishankar, had जी, shared 6 videos of Swami Sarvapriyananda's हाँ हाँ हाँ, मांडुक्य उपनिषद। बहुत सुंदर बोला है उन्होंने, YouTube के 6 बहुत सुंदर। अगर मैं उनका नाम लेने वाला था, अच्छा हुआ आपने बोल दिया। अगर आप वेदांत के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो स्वामी सर्वप्रियानंद के वीडियोस यूट्यूब पे सुनिए और आप डूब जाएंगे, आनंद आ जाएगा, जीवन में एक ऐसी लहर आ जाएगी जो आप शायद अब तक मिस कर रहे थे। सो दैट्स इट। तो coming back to now we move on to nature, and this is something which I think would be close to many people's heart, and Rumi must have liberated them. और ये मैं चाहूंगा कि आप अगर आज के सेशन से और कुछ ना भी ले जा पाए, सब कुछ भी भूल जाएं, तो इस एक बात को एक्सपीरियंशियली आज हम यहाँ महसूस कर लें। और मैं एक छोटे से 2 मिनट इस पे लगाना चाहूंगा सो दैट हम सब इस एक बात को एक्सपीरियंशियली जी लें। अच्छा, एक और मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि जैसा शुरू में भी हमने देखा कि रूमी का संसार इतना विराट है, वो स्वयं में इतने विहंगम है कि 1-1.5 घंटे में उनको समाना एक गागर में सागर भरने जैसा है। सो मेरा प्रयास ये है कि मैं जितना कुछ भी एक कलेवर लेके आपके सामने बैठा हूँ, वो उसमें से जो कुछ भी अच्छे से हम कवर कर सकें वो हो जाए। हमारा ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है और आप उसको हृदयंगम कर पाएं। जब भी समय होगा अनु मुझे सिग्नल कर देंगे उससे 10-1 मिनट पहले, और मैं वाइंड अप की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, क्योंकि आप में से कई लोग जानते हैं कि हमारी एक काव्यांजलि नाम की बैठक होती है जिसमें हम रविवार को बैठते हैं और उसमें हम एक कवि पे 3-1 घंटे लगाते हैं। उसमें भी वो कवि कवर नहीं हो पाता है, तो 1.5 घंटे में रूमी जैसे कवि को कवर करना एक अन्याय वाली बात है। बट उसमें हमारा नियम ये होता है कि जहां कहीं समय होगा अपन रोक देंगे और अगली काव्यांजलि में तो मिलना ही है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई लोड या कोई गिल्ट नहीं रहेगी कि बीच में बात रह गई। भगवान चाहेगा, कैफे चाहेगा तो हम रूमी पे दोबारा मिल लेंगे, और नहीं तो किसी और तरीके से मिल लेंगे। सो वो प्रेशर मैं अपने ऊपर से हटाना चाहता हूँ। और ये वाली बात, सो आई होप यू ऑल विल एग्री विद दिस, वॉट एवर जो एक मैंने आपसे अप्रोच अपनी आज की, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आर यू फाइंडिंग द पेस एंड द वे आई एम अप्रोचिंग स्टफ? Is it fine? Is it slow? Is it fast? Whichever way you say, you can please you can please write मुरली जी, अब वैसे भी और 2 मिनट के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाली 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा, 10 मिनट ही रह बहुत लेट पूछ रहे हैं। मेरे जहन ने मुझे अंदाजा दे दिया था। तो ओके, फिर अगर हम रूमी पे कभी दोबारा मिलेंगे तो हम या इस बात को हम तब एक्सपीरियंशियली कर लेंगे। मैं एक छोटा सा 2 मिनट का एक एक्सपीरियंशियल एक्ट था, वो मैं करवाना चाहता था, बट नेक्स्ट टाइम सही। अभी के लिए इतना बहुत है कि बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग देयर इज अ फील्ड, और रूमी आपको वहीं मिलते हैं। अगर आप इस दुनिया के राइट और रॉन्ग वाले माइंड से उनसे मिलना चाहेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। सो अब ये आप देखिएगा कि इससे कैसे आप मुक्त हो सकते हैं। कहीं मुझे एक कोई गुरु मिले थे जिनकी बदौलत मैं राइट और रॉन्ग से मुक्त हुआ था, और उसकी वजह से कंप्लेंट, ब्लेम वगैरह काफी कम हुआ जीवन में, और उसके बाद रूमी से मिलना हुआ। तो मैंने कहा यार, ये तो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो मैं बोलता हूँ कि राइट और रॉन्ग दुनिया में है ही नहीं। मेरी जो नॉर्मल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है मैं उनमें भी ये बात लोगों को कोशिश करता हूँ कि वहां से लेके जाए। सो इस बात से आपका जीवन वाकई में बहुत बदल सकता है, देखिए अगर हो सकता हो तो। सो बी लाइक अ ट्री, और जो गया उसे जाने दो। ये बहुत प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है, दैट इट्स आवर वेडिंग विद इटर्निटी। सो एक कवि के पास ये जो पावर होती है कि वो
भावों को इतने खूबसूरत शब्दों में हमारे सामने रख सकता है, that our death is our wedding with eternity. So amazing. Amazing, no? Actually, जो बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन जिससे कि हम कॉन्स्टेंटली जी रहे हैं, वो हमें पीसफुल नहीं रहने देते, हमें कहीं गहराई में नहीं जीने देते। ये भी हमें वेदांत से और अपने और सभी गुरुओं से मिलता है। रूमी हमें इससे बार बार मुक्त करने में मदद देंगे। आप जितना रूमी के साथ समय बिताएंगे, रूमी आपको बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन से मुक्त करेंगे, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। देखिए, अगर आप मोर या लेस, कम ज्यादा में फंसते नहीं, डुअलिटी में नहीं फंसते, तो किसी भी तरह की डुअलिटी, दुनिया की सारी डुअलिटी राइट और रॉन्ग से आ रही है, राइट और रॉन्ग के ही शेड्स है, कम ज्यादा, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद वगैरह वगैरह वगैरह, गोरा काला, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, यहाँ तक कि सत्य असत्य भी, क्योंकि सृष्टि में तो असत्य के नाम से कुछ नहीं है, सृष्टि में तो गलत के नाम से कुछ नहीं है, नेचर में गलत के नाम से कुछ नहीं है, फॉर दैट मैटर इवन इन फ्लोरा एंड फौना गलत के नाम से कुछ नहीं है। आपके अपने अंदर यू आर मेड ऑफ एटलीस्ट 3 थिंग्स, बॉडी, whether it is the Hatha Yoga or the I couldn't get you. Somebody said something. Sorry. So, body, mind and soul or awareness. तो आपकी बॉडी में सही गलत कुछ नहीं है, कोई भी एक अंग दूसरे अंग से नहीं बोलता, कोई ब्रेन किडनी को नहीं बोलता कि मैं श्रेष्ठ तू निकृष्ट, है ना, मैं ब्राह्मण तू शूद्र, काइंड ऑफ। तो आपके सोल में अवेयरनेस में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक माइंड का खेल है, सही गलत, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा। तो जब आप इससे मुक्त हो सकते हैं तो इस दुनिया की बहुत सी चीजों से मुक्त हो सकते हैं, और फिर आप कहेंगे है जो कुछ है वो है। सो जब हम इजनेस को वैल्यू करने लगते हैं और उसको देखने लगते हैं, तो वो थोड़ी सी हिम्मत की बात है। सो वंस अगेन ही गिव्स अस अ वंडरफुल मेटाफर दैट soul, moving river, body the river. Somewhere he'll talk of the river and the ocean. Somewhere he'll talk of the wave and the ocean. And wave and the ocean is once again in the Vedanta also. या स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण जिससे सारे गहने बने हैं, और वो आभूषण अलग अलग, कंगन है, माला है, नेकलेस है, अंगूठी है, लेकिन गोल्ड तो सेम है। सो दैट्स द यूनिवर्सैलिटी। एंड देन a journey within self. So this my learning which comes as a sutra for you, jo mante ho jaan lo, jo jante ho maan lo, maybe some other time. This has been one sutra which has helped me a lot in my personal journey, even in this daily world, not just on the spiritual journey, but some other time. Let's see what Rumi reminds us of, and how beautifully he is using the words chiseling and carpenter, and how we are shaping our own destiny. So if we start listening to him, our gestalt changes. The entire paradigm will change. Paradigm will not be the preferred word. Gestalt will be the word. पूरा आपका जो परिदृश्य है सोचने का, महसूस करने का, वही बदल जाएगा। अब ये बात बोलने वाला कौन मिलेगा आपको दुनिया में? That I am the carpenter of my own. क्या बात है? So you again and again start falling in love with him. And this journey, ये एक सोने का कोई भंडार क्या है? बस मीठा, खट्टा, तिख, जो कुछ भी है बढ़ते रहे। सो फिर से वेदांत में बहुत प्यारी बात कही जाती, चरे वेति चरे वेति चरे वेति, चलते रहना ही जीवन। So this at least covers 1/3 of what I had to share with you today. And then we do have the similar section of live, which means जीवन को जीना है। उसमें भी मैं तकरीबन 8 हिस्सों में जाना चाहूँगा। And then we do have liberate, how you can get liberated. Because देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हम सब प्यार करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम जीवन को ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, तब तक हम प्यार कर ही ना पाएंगे। हम खींचे रहेंगे, हम गुस्सा करते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, हम दुख में रहेंगे। सो इन ऑर्डर टू लव वी हैव टू लिव।
live better. And in order to live, you'll find that कि मेरे पास कई बार ऊर्जा ही नहीं होती, या मैं कई बार अपने आप को फंसा हुआ पाती हूँ, या मैं कई बार कहीं उलझी हुई हूँ. जैसा दिनकर ने बहुत प्यारा कहा कि एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो रोता न हंसता. आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है. तो ये जो लिबरेशन है ये कहीं और से नहीं है, मेरी माने तो ये जो लिबरेशन है ये अपनी ही उन चेन्स से है जिनमें हम फंसे हुए हैं. ये वो मकड़ जाल हैं जो हमने खुद बुन लिए, शायद कंडीशनिंग के थ्रू, शायद कहीं और से. और तो जब तक हम लिबरेट नहीं हो पाएंगे हम ठीक से जी नहीं पाएंगे, और जब तक हम जी नहीं पाएंगे हम प्रेम नहीं कर पाएंगे. सो द सीक्वेंस हैज टू बी रिवर्स. लिबरेट होना है बेहतर जीने के लिए, और तब प्यार कर सकेंगे, which is kind of another version of, as I would love to say, that we all want to create value. We want to create value. For creating value in our field of endeavor, in our chosen field, we need power. Power as in empowerment. और वो पावर अगर हमारे पास है भी तो हम उसका इस्तेमाल कई बार इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास फ्रीडम नहीं है. वी आर चेंज. सो द पावर वैल्यू फ्रीडम ट्रिनिटी डिजायर्स दैट कि हम फ्री तो हों. तो ये लिबरेट उस फ्रीडम की बात है. एंड दैट्स इट. सो मे बी अब तो शायद वक्त में 5 ही मिनट बचे होंगे. सो आई वुड प्रेफर दैट आई टेक अ ब्रेक हियर एंड लेट्स ब्रेक इट ओपन. लेट्स हैव एन ओपन हाउस. आप बोलें, आप लिखें, आप कुछ कहें, कुछ पूछना चाहें, आई एम अवेलेबल. प्लीज, ओवर टू एवरीबडी. जी. Shall I do a formal vote of thanks? ओके, थोड़ा सा अभी कितना टाइम वाइज वेर आर वी? लाइक Most people have to leave at 5, तो और 3-4 मिनट में क्लोज करेंगे, नहीं तो फिर Okay, जो so- लोगों ने शुरू से अटेंड किया है they will miss. That is not fair. हाँ नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है. तो मैं बस मतलब मेरी तरफ से देन आई एम ग्रेटफुल. हम टू एक बार अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो ठीक है, नहीं तो क्लोज करके what we can do is we can stop the recording and the Yeah. FB live, and people who can stay on can continue to interact with each other at their own level. यस. सो I don't have to close the meeting. You can, आप बहुत सारे लोगों से बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, आपसे आपस में बात कर सकते हैं आराम से. So before you close it formally, I'm grateful from my side, and as Rumi beautifully says that goodbyes are only for those who love with their eyes, because for those who love with their heart, coming back to the heart, nazar to dil ki ho, hriday ki ho, there's no such thing as separation. So till we meet again, from my side, I'm grateful. Thank you very much. It's been a privilege. समय हमें बांध देता है, तो दोबारा फिर कभी ये समय हमें बांधे और हम मिलेंगे. Till we meet again. Thank you very much. I'm Thank grateful. you so much, Amulya. Thank you to everybody who's joined. Heartfelt gratitude for participating, and you know, the experience is more beautiful when it is shared. अपने आप बैठ के रूमी की पोएट्री पढ़ सकते हैं, 2 लोग बैठ के बात कर सकते हैं, पर जब एक ग्रुप में करते हैं वो कलेक्टिव एनर्जी का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है. And thank you so much, Amulya, for doing this so heartfully and soulfully. I'll just do the closing ke shloka, and then people can move on, and we will close the recording and the live. Yeah. आप में से जो भी रुकना चाहें वो रुकिएगा प्लीज. आपका स्वागत है. So over to you. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramayah, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःख भाग भवेत्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. Just a reminder, on next Sunday we have the Cafe Spirituality open mic bhajan. So whoever wants to sing bhajans, listen to bhajans, please, most welcome. Process will be the same. Registration, I will create the link and send it on the Cafe Spirituality group, as well as to Amulya ji, because a lot of new people have joined in today through him. And thank you to all of you. I'm stopping the live and stopping the recording. Thank you. Thank you.